Hello students, today we are going to start with the new chapter gravitation. Okay, so we'll see what is gravitation, what is the universal law of gravitation, where is it applied, what is the difference between mass and weight, what is gravitational constant, free fall, etc. Okay, so today we are going to discuss about universal law of gravitation. Before we discuss that, let me give you an introduction. See, we know the story of Isaac Newton, right? So what did he observe? He observed that the earth, besides attracting small objects on or near its surface, it attracts planets and other heavenly bodies which are far away from it. So he further assumed that the force of attracting exist uh, between objects big or small, not only on the surface of the earth but anywhere and everywhere in the universe, irrespective of the distances separating them, jitna bhi distance ho. So he named this force of attraction between any two bodies as the force of attraction. Like for example, if we drop a piece of stone, एक थोड़े height से अगर हम लोग एक stone drop करते हैं, so what will happen? It will fall towards the earth, right? Since the stone starts moving downwards, a force must be acting on it. So this force is due to the attraction between what? Earth and stone. And this force is called gravitational force of earth or gravity of earth. Okay, so all this started with Newton saying that an apple falls down from a tree because the earth exerts a force of attraction on it. So that force is force of gravity. Alright, so see, that's the reason that causes water to flow downwards. आपने कभी पानी को ऊपर की तरफ flow होते हुए नहीं देखा होगा, नीचे की तरफ, like it flows downwards, है ना? Rain falls down from the sky. आप surface से ऊपर जाते हुए नहीं देखेंगे. You always see rain falling down from the sky to the earth due to gravitational force of earth or gravity of earth, you can say. Right? So now you can see an image here. A stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude. इसमें क्या हो रहा है? Consider क्या है? Consider a girl जो stone को इस तरह घुमा रहा है, whirl कर रहा है, whirling a stone along a circular path. If the girl releases the stone at some point, अगर stone release होता है, okay, तो क्या होगा? Stone fly करेगा along the tangent at any point on the circular path, right? At any point on the circular path. यानी बिफोर द रिलीज ऑफ थ्रेड स्टोन क्या करेगा? स्टोन वॉज मूविंग एक यूनिफॉर्म स्पीड में, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था बट विद द यूनिफॉर्म स्पीड इट वॉज मूविंग, राइट? सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन इट मूव विद अ वेरिएबल वेलोसिटी और उसका एक डेफिनाइट एक्सेलरेशन था. सो द फोर्स दैट कॉजेस दिस एक्सेलरेशन एंड मेक्स द स्टोन मूव along the circular path, वो किस तरफ एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द हैंड ऑफ द गर्ल, है ना? टुवर्ड्स द हैंड ऑफ द गर्ल, यानी वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा. तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी व्हेन द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन डज नॉट एक्सपीरियंसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, समझ गए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अब देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. सिंपल सी बात है, एवरी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? मास से, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास से, और कितना दूर वो ऑब्जेक्ट है. मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है m1 और ये ऑब्जेक्ट का मास है m2, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं d. ठीक है, सो जैसे मैंने बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. तो वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे विल गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय डी स्क्वायर. और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, एक जी आ गया यहाँ पे, इक्वल टू आना चाहिए, तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो आपको मिलेगा जी. और जी क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
ठीक है. So when you remove this, you get F is equal to G m1 m2 by d square. So F d को shift करो, what will you get? F d square is equal to G m1 into m2. So उसमें से G क्या हो जाएगा? Gravitational constants F d square by m1 m2. तो अगर m1 m2 1 kg है और अगर डिस्टेंस 1 मीटर है तो G क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर हो जाएगा. दिख रहा है? राइट. So universal gravitational constant क्या है? Is the force of attraction between two bodies of mass having 1 kg, each lying 1 meter distance apart. ठीक है. तो उसका SI यूनिट आपको G का जो SI यूनिट है आपको इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा. क्या होगा? फोर्स क्या है? न्यूटन. डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. मास क्या है? kg इंटू kg. तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो यूनिवर्सली ये कांस्टेंट वैल्यू है जी का, विच इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और ये जो नाम है यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, इट्स हेनरी कैवेंडिश. ठीक है. द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश. ओके. सो बेसिकली अगर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग, यानी बहुत लार्ज मास का है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स वेरी लार्ज एंड इट्स इफेक्ट कैन बी सीन इजीली. जैसे अगर एक एग्जांपल बोलूं, अगर एक स्टोन है एट अ सर्टेन हाइट, ठीक है, तो एंड द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर. स्टोन और अर्थ क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. सिंस द अर्थ हैज अ वेरी लार्ज मास, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज, ड्यू टू विच स्टोन इज ड्रॉप्ड, इट मूव्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है. समझ गया? अगर बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका. वैसे उससे पहले इसका एप्लीकेशन क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, आप कहाँ देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो कुछ एग्जाम्पल्स दिया, जैसे बिटवीन अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, या बोल सकते हैं planets are revolving around earth, yeah, the satellites are revolving around earth, yeah, moon is revolving around earth revolving around the sun. All these tides formed by rising and falling of water level on the ocean, है ना. all these are flow of water in rivers is also due to gravitational force of earth on water. So all these are importance and application, you can say importance or application of universal law of gravitation. ठीक है. so एक एग्जाम्पल लिया है, अगर कैलकुलेट करना हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बिटवीन अर्थ एंड द मून. सो m1 m2 दिया हुआ है. ठीक है. और डिस्टेंस जो मून और अर्थ के बीच में है वो भी ले लिया है. जी कांस्टेंट हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है. फोर्स का फॉर्मूला वी नो जी m1 m2 by r square. आई सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू. So when I solve, I get force as 2.01 into 10⁻20 Newton. So it is this large gravitational force which is exerted by Earth on Moon. तो ज़रूरी नहीं है कि ये between Earth and Moon ही calculate करे, एक small object और big size object के बीच में भी हो सकता है, right? Okay. So you just need to keep in mind that कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन, अगर मान लेते हो दो बॉल लिया जिसका 1 kg है ईच, ठीक है, तो वो काफ़ी छोटा होगा. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन एक छोटे बॉल और अर्थ के बीच में वो बहुत ज़्यादा होगा. कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट अगर काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा मास है मतलब, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है. जैसे अर्थ, मून, सन, इन सब की बात करते हैं तो इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है. ओके. यही रीजन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सोलर सिस्टम को होल्ड करता है साथ में, थ्रू ऑल द, मतलब सन विल बी द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज, एंड द 8 planets आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. सो द planets मूव इन ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन. ठीक है. एंड इवन टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द planets, द सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है प्लैनेट्स पे, उसके वजह से होता है. ठीक है. समझ गए? यानी एक सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एक फोर्स चाहिए जो एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज नीडेड टू मेक ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ. मतलब आप ये जो ऑर्बिट में ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स है जो सेंटर से मिल रहा है. सो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स.
ओके, सो इट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन. ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन. ओके, now talking about, see, there's a portion in the textbook which talks about Kepler's law of planetary motion. As such, it's not important considering CBSE exams. ठीक है, you can go through it. जिसका एक या दो छोटे छोटे रूल्स है जो मैं आपको रफली बता देती हूँ अभी. सी, एक्चुअली केपलर कौन था? 16th सेंचुरी का एक एस्ट्रोनॉमर था जिसने 3 लॉ गवर्न किया अबाउट सन एंड प्लैनेट्स. तो जिसको हम कहते हैं केपलरी लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं इसको. तो इसका जो पहला लॉ है केपलर का, इट स्टेट्स कि प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन एट द वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट. देखो, कहने का मतलब है अगर एक एलिप्टिकल मान लेते हैं सन यहाँ पे, ठीक है, सन इज हियर, सो द पाथ या ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज व्हाट? एलिप्टिकल. ऐसे एलिप्टिकल होता है, बराबर, एंड नॉट एन एग्जैक्ट सर्कल. सो एलिप्टिकल पाथ के क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं. एक तो मैंने सन को रखा हुआ है, ठीक है, सन को प्लेस किया हुआ है एट 1 फोकस ऑफ दिस पाथ, ठीक है. सो प्लैनेट कहाँ रिवॉल्व करेगा? प्लैनेट विल रिवॉल्व इन दिस मैनर. ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है इस मैनर में प्लैनेट रिवॉल्व करेगा. सो ये जो ऑर्बिट है इट हैज 2 फोकस F1 एंड F2. ये एक फोकस होगा, इसका एक दूसरा भी फोकस होगा F2. समझ गए? सी, कहने का मतलब है कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जिसमें प्लैनेट रिवॉल्व करता है, तो सन को क्या लिया? ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके 2 फोकस लिया जाता है, होता है F1 एंड F2. तो सन इज प्लेस्ड एट F1 एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दिस एलिप्टिकल ऑर्बिट. ऐसा, ठीक है. अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब, कहने का मतलब है कि जब प्लैनेट मूव कर रहा हो अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो सन एक फोकस पे होता है, तो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया. मतलब ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, अगेन कंसिडर दिस, ठीक है. सन यहाँ पे है, यहाँ पे सन है मान लेते हैं, ओके. सो अगर प्लैनेट, जो लाइन जॉइन होता है प्लैनेट का, जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन क्या करेगा? स्वीप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन. यानी मान लेते हैं सन यहाँ पे, एक पॉइंट P ले लो यहाँ पे, ठीक है, यानी प्लैनेट P है ये, मान लेते हैं ये प्लैनेट P है, ठीक है, मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. सो प्लैनेट इज नियरर टू द सन. ये अगर इसका पोजीशन ले लेते हैं A, सन के पास है, ठीक है, तो इट ट्रैवल्स फास्टर एंड स्वीप्स एन एरिया. मतलब मान लेते उसने फटाफट ट्रैवल किया और वो पहुंच गया B पोजीशन पे, ओके. और जो टाइम लिया है A to B पहुंचने के लिए वो ले लेते हैं T, ठीक है. तो उसने कितना एरिया कवर किया? ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया कवर्ड. ऑलराइट. सो व्हेन द सेम प्लैनेट अगर सन से अगर दूर है, यही प्लैनेट P जो है अगर सन से काफी दूर है और वो स्वीप करता है एरिया, मान लेते हैं इस पोजीशन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सन से यहाँ पे A' ले लेते हैं, यहाँ से वो गया B पोजीशन तक, B' पोजीशन तक. तो जो एरिया ये स्वीप कर रहा है दैट विल बी A' B' और ये सन का S, A' B' S, ठीक है. इन टाइम T ले लेते हैं. तो ये कहना चाहता है ये कि प्लैनेट्स डज नॉट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन. Speed is greater when the planet is nearer to the sun and less when the planet is farther away from the sun. ये कांस्टेंट स्पीड में प्लैनेट ट्रैवल कर सकता था अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं होके सर्कुलर होता. तो मतलब अगर जब सन के पास होता है प्लैनेट तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे सन से प्लैनेट दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है.
ठीक है, ये है सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में ये बोला जाता है जो क्यूब डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। अगर जो डिस्टेंस है प्लैनेट का फ्रॉम द सन, अगर उसको आर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो क्यूब ऑफ डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम जो प्लैनेट लेता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, उसका स्क्वायर टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आर को हम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन लेते हैं और टी को हम टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट लेते हैं, तो ये कहता है कि ये जो क्यूब है डिस्टेंस का, क्यूब डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो एक्चुअली देखा जाए ना तो actually Newton is the one who showed कि the cause of motion of planet is the gravitational force which the sun exerts on them. So Newton used Kepler's third law, ये जो अभी हमने देखा r cube is directly proportional to t square. So he developed, through this he could develop this law of universal gravitation. तो वहाँ से उसको आइडिया आया डिस्टेंस का, जहाँ से इट्स लाइक एक see the force between two bodies is inversely proportional to square of distance between them. ये जो सेंटेंस है इसी को हम इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। F is inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, अगर डिस्टेंस को r लिया है तो क्या हो जाएगा, 1/r² हो गया, बराबर। So Newton got the idea of inverse square rule for gravitational force between two bodies by applying Kepler's third law to the orbit of planet around the sun। ठीक है, so you just need to know this as such। Kepler's law जो हमने अभी डिस्कस किया, it's not very important to a CBSE exam, considering CBSE exams। okay, so next क्लास में हम देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन कैसे रिलेटेड है, फ्री फॉल क्या होता है, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेट्रा।